Morning students, today I am going to start your new chapter from your supplementary reader. Name of the chapter is Footprints Without Feet. The chapter name is also same as the name of your reader, Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. About the chapter, today just I am going to give you the introduction of the author, theme of the story and this general a short summary. And in my next video I will continue with the chapter page wise explanation. So first I would like to start with the introduction of author. About the author, Herbert George Wells was born on 21st September 1866 in Bromley, United Kingdom. He was an English writer. He was prolific in many genres, writing dozens of novels, short stories and works of social commentary, satire, biography and autobiography, and even included two books of recreational war games. He is now best remembered for his science fiction. He died on 13th August 1946 in London. Theme of the story. This story is about a scientist who discovers how to make himself invisible, as he was afraid of being discovered in London, where he had committed some crimes. He runs away to remote village. However, he runs out of money and resorts to robbery, using his advantages of invisibility. अब इस थीम से आपको स्टोरी के बारे में समझ में आ गया होगा, कुछ आइडियाज़ आपको ग्रास्प हो गए होंगे कि स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में जिसने डिस्कवर किया इनविजिबिलिटी को, कि वो अपने आप को कैसे इनविजिबल करेंगे। और वहाँ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ लंदन में कि वो लोगों के द्वारा पहचाना नहीं चाहे, लोग उन्हें ना पहचान लें, इस डर से उन्होंने अपने आप को इनविजिबल कर लिया उनके डिस्कवरी के मदद से, क्योंकि उन्हें वहाँ से भागना था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग डिस्कवर्ड इन लंदन, सो ही एस्केप्ड टू अ रिमोट विलेज। वो पास के ही एक गांव में चले गए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे क्राइम किए थे, उससे वो भाग रहे थे। उन्होंने अपनी इनविजिबिलिटी को उसमें यूज़ किया ताकि लोग उन्हें ना पहचान पाए। हाउएवर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उनके पैसे ख़त्म हो गए। अब उन्होंने रॉबरी करना स्टार्ट की। उन्होंने अपने इनविजिबिलिटी का एडवांटेज लिया और उन्होंने ऐसे चीज़ें की जिससे उन्हें पैसे मिले, उन्हें शेल्टर मिले, उन्हें खाना मिले, जो बहुत ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए। अब हम इसकी समरी पढ़ेंगे। Griffin was a brilliant scientist. He conducted many experiments. One day he discovered a wonderful drug. It would make himself invisible. He took the drug and became invisible. He could see everybody, but nobody could see him. Griffin landlord did not like him. He tried to get his house vacate. Griffin became angry. He set the house on fire. Then he took the drug. He took off his clothes. He became invisible and went out. अब ग्रिफिन एक बहुत ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। यहाँ पे जो कैरेक्टर है उनका नाम, जो साइंटिस्ट है उनका नाम ग्रिफिन है, वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे, इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। उनके इन एक्सपेरिमेंट से एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो किया वो था इनविजिबिलिटी का, कि उन्होंने अपने आप को कैसे इनविजिबल बनाना है। तो अब उन्होंने इसको तो इनविजिबिलिटी वाला जो एक्सपेरिमेंट था उनका हो गया। अब उन्होंने क्या करा, उस इनविजिबिलिटी से क्या होता था कि वो तो लोगों को देख सकते थे मगर लोग उन्हें नहीं देख पाते। अब ग्रिफिन जहाँ रहते थे, उनकी जो लैंडलॉर्ड थी वो उनसे परेशान हो चुकी थी। वो चाह रही थी कि उनका घर वो खाली कर दे। ग्रिफिन को गुस्सा आया तो उन्होंने वो ड्रग जो इनविजिबिलिटी का उन्होंने बनाया था उन्होंने वो ले लिया। उन्होंने अपने कपड़े भी उतार दिए और वो इनविजिबल हो गए और वो बाहर चले गए। इट वॉज विंटर. It was not easy to walk without clothes. Griffin had no money, so he went into a big London store. He stole clothes from there. When he walked with those clothes, it seemed as if a headless man was walking. He took meat, coffee, sweets and wine from the kitchen of the store. Then he stepped on a pile of quilts there. He slept on a pile of quilts there. अब यहाँ पर ग्रिफिन इनविजिबल तो बन गए, मगर वो टाइम जो था समर का था, मतलब उन्होंने अपने कपड़े उतार रखे थे। अब बहुत मुश्किल था समर के टाइम में नेक्ड घूमना। तो उन्होंने क्या करा, उनके पास पैसे भी नहीं थे। उन्होंने क्या करा कि एक बिग जो बहुत बड़ी स्टोर थी लंदन स्टोर, वहाँ पर जाकर उन्होंने कपड़े पहन लिए। उन्होंने वहाँ पर जो खाना सब रखा था वो खाया और रात को वहाँ सो गए।
अब जैसे उन्होंने कपड़े पहने तो वो थे तो इनविजिबल, ऐसा लगा था कि एक आदमी घूम रहा है जिसका कोई सर नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही डिड नॉट वेक अप इन दैट टाइम. द शॉप असाइनेंट्स अराइव्ड at and saw him. Griffin ran out of fear. The assassins ran after him. Griffin took off his clothes one by one. He became invisible again, but now he was shivering with cold. He entered the shop of a theatrical company. He wore bandages around his forehead. He also wore dark glasses, a false nose, and whiskers. Griffin robbed some money of the shopkeeper. Then he took a train and reached Epping village. अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि उस रात को तो उस शॉप पे कोई नहीं था. नेक्स्ट मॉर्निंग वो उठने में थोड़ा देर हो गया उनको, तो वहाँ के जो भी असाइसेंट्स जो लोग थे, असिस्टेंट्स, वो लोग बहुत जल्दी आ गए. उन्होंने ग्रिफिन को देख लिया और ग्रिफिन घबरा गए और लोग उन्हें देख रहे थे तो उन्होंने पहचान लिया था. तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे अपनी इनविजिबिलिटी वापस अटेम्प्ट की, कैसे उन्हें अपने कपड़े धीरे धीरे उतारे और इनविजिबल हो गए और वहाँ से वो बाहर निकल गए, भाग गए. मगर जैसे ही बाहर आए, ठंड था तो वापस वो शिवर करने लगे. तो पास में ही एक थिएटर कंपनी थी, वहाँ वो गए. उन्होंने अपने आप को बैंडेज से रैप किया. वहाँ पर उन्होंने डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, विस्कर्स, ये सब फॉल्स आइडेंटिटी उन्होंने अपनी बनाई और उस दुकान से उन्होंने पैसे भी चुराए और वो ट्रेन पकड़कर पास के ही गांव इपिंग में पहुंच गए. एट इपिंग ग्रिफिन took 2 rooms at an inn. He paid the rent in advance. The name of a landlady was Mrs. Halls. She tolerated the strange behavior of Griffin. Soon Griffin spent the stolen money. He told the landlady that he had no cash. He said that he was expecting a check. The next day he stole money from the house of a clergyman. The clergyman and his wife were surprised. They had not seen anybody coming. Their room was empty. Even then the money was stolen. After some time the landlord and his wife found Griffin's room open. They entered the room but there was nobody. Griffin's clothes and bandages were lying on the floor. Suddenly the hat jumped and struck Mrs. Hall's face. Then the chair jumped and charged at her. The couple were afraid. They thought that there were ghosts in the room. They cried and ran downstairs. अब क्या हुआ, अब वो इपिन विलेज पहुँचे. उन्होंने वहाँ 2 रूम उन्होंने बुक करवा ली थी और उन्होंने उस लैंडलेडी को एडवांस में ही पैसे दे दिए थे. उस लैंडलेडी का नाम मिसेस हॉल्स था. अब मिसेस हॉल्स ने ग्रिफिन के स्ट्रेंज बिहेवियर को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि उस समय ऑफ सीजन में, विंटर के समय, ग्रिफिन जैसे अगर एक गेस्ट आ गया है और जो उनका एडवांस में पेमेंट दे रहा है तो उन्होंने उसकी स्ट्रेंजनेस को अवॉइड किया, क्योंकि उसके लिए उस समय वो पैसे बहुत इंपॉर्टेंट थे. मगर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, ग्रिफिन के जो सारे पैसे थे वो ख़त्म हो चुके थे. अब उन्होंने क्या करा कि अब उसी घर में, क्लर्जीमैन के ही रूम में उन्होंने पैसे चुराए. मगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो बहुत डर गए थे कि जो रूम पूरा खाली था तो रूम में से पैसे गए कहाँ. फिर उन्होंने देखा कि ग्रिफिन के रूम जो था वो ओपन था और उन्होंने उस रूम को एंटर किया तो देखा कि उसके सारे जो कपड़े हैं, बैंडेज है, वो बेड पे पड़े हुए हैं. और सडनली एक हैट आती है और मिसेस हॉल्स के चेहरे पे स्टक होती है. वो चेयर हवा में जंप होती है, उन पे अटैक करती है और ये जो दोनों कपल हैं वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं. उन्हें लगता है कि इस रूम में कोई गोस्ट है. जैसे कि नीचे ही रूम में भी उनके पास क्लर्जीमैन के रूम से पैसे चुराए गए थे, मगर वहाँ कोई दिख नहीं रहा था और कोई अंदर आया भी नहीं था घर में. तो उन्हें लग रहा था कि कोई गोस्ट है और वो चिल्लाए और नीचे डाउनस्टैर्स चले गए. The neighbors gathered that. They thought that the Griffin was responsible for all that. A policeman was called. Before that, Griffin and Mrs. Hall had a quarrel. Griffin became angry. He threw off his bandages, spectacles and false nose. Now he was wearing clothes but his body was not visible above the neck. The people were horrified. Then they saw a headless man. अब उन आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा कि इन सब के लिए शायद उन लोगों ने ग्रिफिन को जिम्मेदार ठहराया और उन्होंने पुलिस को बुला दिया. उतने में ही ग्रिफिन और जो मिसेस हॉल्स थी, उन दोनों के बीच में बहस हुई और ग्रिफिन बहुत गुस्से में आ गया. उसने क्या करा कि उसने अपने सारे जो बैंडेज और फॉल्स नोज, फॉल्स अपीयरेंस थी, उसे निकाल के फेंक दी. अब वो सिर्फ मैन दिख रहा था जिसका बिल्कुल सर नहीं था और जो लोग थे वो भी सब डर गए थे. ऐसा लग रहा था कि हेडलेस मैन वॉज मूविंग. जस्ट देन द पुलिस केम. ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ हेडलेस मैन. ही ट्राइड टू कैच ग्रिफिन बट द ग्रिफिन स्टार्टेड टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स. ही बिकेम इनविजिबल. अब पुलिस भी आ गई इतने में. अब वहाँ पर उनके सबके सरप्राइज़ में अब उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर एक हेडलेस मैन है. उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर ग्रिफिन ने क्या किया, तुरंत अपने कपड़े सारे उसने उतार लिए और वापस वो इनविजिबल बन गया. दोज हू ट्राइड टू कैच हिम गॉट
ब्लोज आउट ऑफ एयर, जिसने उसे पकड़ने की कोशिश की, सिर्फ हवा का एक तेज़ बहाव उन्हें महसूस हुआ और कुछ नहीं. ग्रिफिन बिकेम फ्री. नोबडी न्यू वेयर टू ले अ हैंड ऑन ग्रिफिन. किसी को पता नहीं था कि अब उसको पकड़ने के लिए कहाँ हाथ डालें, क्योंकि वो इनविजिबल हो गया था. ग्रिफिन केम आउट ऑफ द इन एंड स्टार्टेड वॉकिंग ऑन द रोड. अब वो रोड पे आ गया इन से बाहर निकल कर. नाउ ही वॉज अगेन अ फ्री मैन. अब वापस वो एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में घूमने लग गया. यहाँ पे जो स्टोरी में ग्रिफिन की जो इनविजिबिलिटी है, उसका जो ड्रग है, वो उसे तब तक इनविजिबल रखता है जब तक वो पूरा नेक्ड रहे. अगर कुछ क्लोथिंग उसने पहन ली है तो वो सारा विजिबल हो जाएगा दूसरों के आइज़ में, सिवाय नेक्ड बॉडी ही इनविजिबल रहेगी. तो यहाँ इसीलिए वो हेडलेस मैन लग रहे थे जब उन्होंने कपड़ा पहना था. हम आगे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, पेज वाइज एक्सप्लेनेशन, सॉरी. Hope you have understood what the chapter is about, and we will read in our next video the page wise explanation of this chapter. Thank you.